Good morning, student of class 3. Today our topic is chapter 5, The Wise Minister. Before starting the chapter, we have to warm up ourselves. Look at the picture, find the things shown below. ये जो पिक्चर सामने नज़र आ रहा है, इसे बड़े ध्यान से देखो और ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व मतलब निरीक्षण। आप कोई भी चीज़ जब आप बड़े ध्यान से देखते हो तो उससे संबंधित सभी बातें आपके दिमाग में छपने लगती हैं। टू ऑब्जर्व इज़ टू लुक केयरफुली. इफ़ यू कैन नोटिस पीपल एंड थिंग अराउंड यू, exactly you have powers of observation. This is a story about a person with great powers of observation. अगर ये पिक्चर आपको दिया जाए, आपका 2 मिनट 5 मिनट बड़े ध्यान से इसे देखेंगे, जिसे गौर से देखना कहते हैं, तो आपके दिमाग पे वो सारी चित्रों के छाप छूट जाएंगे. इसे कहा जाता है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और ये पिक्चर जब सामने होगी भी नहीं, तब भी आप उसे बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि वो चीज़ें क्या थी, क्यों थी, उससे संबंधित बातों को भी आप समझ सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, I have to say something that this story focuses on the ability of a person to observe things and accordingly can recognize the situation without actually knowing about it. As for example, if we see a child not playing with friend and sitting at a corner making faces, we immediately come to a conclusion that the child is angry on his or her friends, and that is why sitting alone to show his or her disappointment toward his friends. The power of observation is very much required in our lives also. So let's see how the wise minister used to observe different things and give answers about them without actually knowing them. Also, we will learn the importance of observation. Let's start off reading. Actually, reading is very fun. There once lived a king who had a wise and clever minister called Chatur, who seemed to know everything. The king came to conclusion that Chatur could read minds. Chatur protested that he couldn't, that he only observed things. But the king refused to believe him, and so they quarreled. Everyone says you can read minds and you won't even show me how you do it, the king said angrily. I truly cannot read minds, sire, Chatur said quietly. I don't believe what he says. I will trick him into proving he can, thought the king, giving Chatur a sly look. एक समय पहले की बात है, एक बहुत बुद्धिमान और चतुर मिनिस्टर हुआ करता था, जिसे चतुर के नाम से जाना जाता था. लगता था जैसे वो सब कुछ जानता है. उसकी बुद्धि और चतुराई को देखते हुए राजा, जिसके दरबार में वो काम करता था, उसे लगा कि चतुर किसी भी व्यक्ति का दिमाग को पढ़ सकता है, और वो इस बात के लिए चतुर को काफ़ी टोकता भी था. चतुर बार बार प्रोटेस्ट करता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ चीज़ों को बड़े ध्यान से गौर से देखता हूँ और उसी के आधार पर अपना कंक्लूज़न देता हूँ. लेकिन राजा बार बार उसकी बात को नकारता था और वो कहता, राजा, कि तुम झूठ कहते हो. सारे लोग कहते हैं कि तुम सबके दिमागों को पढ़ सकते हो और तुम मुझे ये बताते नहीं. ये बात कह के हमेशा राजा उससे गुस्से में बात करता और लगभग कभी कभी उसके साथ थोड़ी बहस भी हो जाती. और बार बार चतुर शांति से यही जवाब देता कि मैं किसी के दिमाग को पढ़ नहीं सकता. इस तरह से एक दिन राजा ने सोचा कि चलो कोई ट्रिक खेलते हैं और चतुर के दिमाग पढ़ने की जो ताकत है उसको प्रूव करते हैं. लेट्स गो राइडिंग, द किंग सेड टू चतुर. Chatur and the king rode into the nearby forest and came across a man. Chatur, do you see that man there? Asked the king. Yes, sire, said Chatur. What do you think he does for a living? The king asked. He is a carpenter, your majesty, Chatur replied without hesitation. And what is his name? The king asked craftily.
The same as mine, Chatur, said the minister. The king gave him a sharp look and said, "Give him some money. He looks hungry and in need of food." "That's not necessary, sire," said Chatur. "He is not hungry. He has just eaten some sweets." "You appear to know a lot about a total stranger," the king said stonily. "Now let's ask him and see if you are right." "Of course he is," the king thought peevishly. "He can read minds." चतुर के दिमाग पढ़ने की ताकत को प्रूव करने के लिए एक दिन राजा ने कहा, चलो चतुर, हम लोग घोड़े की सवारी पर जाते हैं। और चतुर और राजा घोड़े की सवारी पे पास के जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे एक आदमी मिला और उसे दिखाकर राजा ने पूछा चतुर से, चतुर, उस आदमी को देख रहे हो? चतुर ने जवाब दिया, हाँ। बताओ वो क्या करता है अपना जीवन यापन करने के लिए? चतुर ने जवाब दिया, वो एक कारपेंटर है, वो एक लकड़हारा है मैजेस्टी। बिना किसी झिझक के उसने जवाब दे दिया। और उसका नाम क्या है? तुरंत उसने राजा ने पलट जवाब दिया और उसने जवाब दिया, उसका नाम भी चतुर है। किंग ने एक बहुत शार्प लुक दिया। शार्प लुक, स्लाई लुक, एक्चुअली इसका मतलब होता है बहुत लुक शोइंग यू नो समथिंग दैट अदर्स डू नॉट। ऐसा एहसास कराना कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, बाकी को कुछ पता नहीं, ऐसा ही कुछ शार्प लुक उसको देते हुए कहा, गिव हिम सम मनी, जाओ उसे कुछ पैसे दो, लगता है वो बहुत भूखा है और उसे खाने की ज़रूरत है। चतुर ने जवाब दिया, नहीं मैजेस्टी, उसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भूखा नहीं है, उसने शायद अभी अभी थोड़ी मिठाई भी खाई है। राजा ने तुरंत बिना किसी एहसास, किसी तरह का फीलिंग को जताते हुए बोला, जैसे लगता है तुम तो स्ट्रेंजर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। चलो चल के उसी से पूछते हैं कि तुम सही हो या नहीं। चतुर ने भी जवाब दिया कि हाँ ठीक है, चलिए महाराज। राजा ने सोचा, चलो यही सही है, इसी से प्रूफ हो जाएगा कि चतुर माइंड को रीड कर सकता है कि नहीं। That is all for today, student. I have given you some worksheets related to this chapter that you have to read it carefully, find out the difficult words and note it down in your notebooks, and also try to find the meaning of that difficult words from the dictionary. That's all for today. Tomorrow we will come and complete this story. God bless you.